السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، راہی نجات پلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ سیر کرنے والے، ابن عباس کہتے اس سے مراد ہے روزہ رکھنے والے۔ جو لوگ مہینے میں کم سے کم 3 روزہ رکھتے ہیں، 13، 14، 15 کے، ان کا شمار صاححون میں ہوتا ہے، یعنی روزہ رکھنے والوں میں۔ اور روزے کی فضیلت تو آپ سب جانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں روزہ رکھیں گے تو صحت بگڑ جائے گی، آقا فرماتے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ ساری دنیا نبی کے خلاف بولے وہ جھوٹی ہے، میرے نبی سچے ہیں، اس لیے کہ ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کی رہی، انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے مہینے کے کم سے کم 3 روزے تو رکھنے چاہیے، صاححون میں شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا الراکعون، رکوع کرنے والے۔ مومن کی صفت بیان کی جائے، رکوع کرنے والے۔ یہ رکوع کیا ہے؟ یہ رکوع کیا ہے؟ اللہ نے جب نماز باجماعت کا حکم دیا تو فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ نہیں کہا وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، بلکہ فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع وہ عمل ہے جو صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے رکوع اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا۔ اور رکوع کی شان یہ ہے جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کے گناہوں کی گٹری اس کی پیٹھ پہ رکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو گناہوں کی گٹری زمین پہ گر جاتی ہے۔ اور اللہ اکبر، جب فرشتے واپس اس گٹری کو اس کے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں پھینک دو اسے، مجھے حیا آتی ہے جو بوجھ اس کی گردن سے گر چکا ہے واپس اس کی گردن پر ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، رکوع کا ذکر خاص طور پر کیا گیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس لیے کہ معبودان باطل کی عبادت قیام کر کے کی گئی، سجدے کر کے کی گئی، لیکن کسی مذہب میں بتوں کی یا معبودان باطل کی عبادت رکوع کے ذریعے نہیں کی گئی۔ اللہ نے رکوع کو اٹھا کر کے رکھا، یہ رکوع کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ آج بھی دیکھ لے باطل مذہب کے لوگ جتنے بھی معبودان باطل کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، یا تو کھڑے رہ کر یا تو سجدہ کر کے، رکوع کر کے کوئی کسی جھوٹے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ رکوع وہ خصوصیات ہے امت محمدیہ کی۔ اور پھر فرمایا الراکعون الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ مومنوں کی شان ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا جب دعا قبولیت کی آثار ظاہر نہ ہو دعا کے تو سر کو سجدے میں رکھ کر دعا کیا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور سجدوں کی برکت سے اللہ دل چمکاتا ہے اور چہرے بھی منور فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ اب تو کوئی کسی کو نیکی کا حکم دیتا نہیں، اور نیکی کا حکم جو دیتا بھی ہے تو وہ برائی سے منع نہیں کرتا، اس لیے کہ نیکی کا حکم دینا آسان ہے اور برائی سے منع کرنا مشکل ہے۔ ہم کہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ نیکی کا حکم ہے، لیکن اللہ اکبر اگر کوئی بدعقیدوں سے رشتہ داری کر رہا ہے ہم ڈرتے کیسے منع کریں، منع کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ ارے تجھے انسانوں کی ناراضگی کا خیال ہے، تجھے خدا کی ناراضگی کا خیال نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت نیکی کا حکم دینا بند کر دے گی اور برائیوں سے روکنا بند کر دے گی، وہ قرآن کے فیضان سے محروم کر دی جائے گی، اس وقت اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا اور ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرمائے گا۔ آج آپ دیکھیں اگر کوئی باپ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بیٹے کو نماز کا حکم نہیں دیتا، کوئی ماں اگر نماز کی پابند ہے وہ اپنی اولاد کو نماز کی پابند نہیں بناتی۔ امر بالمعروف، اللہ اکبر، یہ امت محمدیہ کو حکم دیا گیا، مومن کی صفت ہے اچھی بات
बात का हुक्म दो, बुरी बातों से मना करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अच्छी बात का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं वो मेरी उम्मत में मुजाहिदों से अफजल है और उनका मर्तबा अल्लाह के नजदीक शहीदों से भी बढ़ करके है। अल्लाह ऐसे बंदों का निकाह जन्नत में 300 हूरों के साथ फरमाएगा। आओ, अगर इस पर अमल करना है तो सुन्नी दावत इस्लामी जैसी आलमगीर तहरीक मौजूद है, इस तहरीक से वाबस्ता हो जाओगे तो नेकी पर का हुक्म देने का मौका भी मिलेगा, नेकी का हुक्म देने का मौका भी मिलेगा, बुराइयों से रोकने का मौका भी मिलेगा। ये तहरीक अम्र बिल मारूफ की तहरीक है, नहीं अनिल मुनकर की तहरीक है। आइए अपने आप को भी गुनाहों से बचाइए और दूसरों को भी गुनाहों से बचाइए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर कोई बंदा मेरे किसी उम्मती को गुनाह से बचा लेता है, गोया कि वो इस्लाम को नई जिंदगी अता कर देता है, तो ये मोमिन की सिफत है। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना। एक मर्तबा एक सहाबी को मेरे आका ने कई दिन तक नहीं देखा, पूछा कि वो फला साहब नहीं दिखते। अस्की हुजूर वो गार में बैठ के इबादत कर रहे हैं। सरकार फरमाते उनको बुलाओ। वो आए, पूछा तुम क्यों गार में चले गए? गार में जाना रहबानियत की जिंदगी गुजारना ये इस्लाम नहीं। हुजूर गार में जाने की वजह यह है कि हम यहाँ किसी को नेकी का हुक्म देते, बुराई से रोकते, लोग नहीं मानते। आका फरमाते गार की 70 साल की इबादत से यहाँ की एक लम्हे की जिंदगी बेहतर है। लोगों को नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। और सुनो, इस दौर में तो ज्यादा जरूरत है, अगर अपनी चीख से किसी एक का भी ईमान बच जाए अपना बेड़ा पार। एक साहब का एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। जब उनको देखा कि वो जन्नत में, पूछा आप जन्नत में कैसे चले गए? तो कहा कि हुजूर से मुझे जो निस्बत थी उसके सदके अल्लाह ने मुझे जन्नत अता की। कहा हुजूर से तुमको क्या निस्बत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया कि जो निस्बत चरवाहे से कुत्ते को होती है वही निस्बत मुझे मेरे रसूल से थी। का मतलब ये कि जब चरवाहा बकरियां चराता है, उसकी भेड़ें चराता है, तो उस वक्त वो कुत्ता पालता है, चरवाहा कुत्ता पालता है। तो चरवाहा दरख्त के नीचे बैठा होता है, लेकिन भेड़िया या शेर और दरिंदे जब आने लगते हैं तो कुत्ते को उनकी बू आती है, तो बकरियां इधर उधर होती है तो कुत्ता भौंकने लगता है। तो उसके भौंकने की आवाज सुनकर बकरियां दौड़ दौड़ कर अपने मालिक के पास आ जाती है और वो भेड़ों से और दरिंदों से बच जाती है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे आका कब्र अनवर में आराम कर रहे हैं और ये उम्मत भोली भाली मेरे मुस्तफा की बकरियां हैं। तो जब लोग दीन का चोला पहनकर इनका ईमान लूटते थे तो हम चीख करके पब्लिक को बचाते थे। ए लोगों, ये मत करो, इनके करीब मत जाओ, उनके करीब मत जाओ, ऐसा न करो। इस तरह से हम ईमान बचाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये निस्बत काम आ गई और इसी के सदके अल्लाह ने हमें जन्नत में पहुंचा दिया। तो लोगों याद रखो, अल्लाह ने आवाज दी है, अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने ज़बान दी है, हक बोलो। अगर अपनी वजह से किसी का ईमान बच गया तो दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। अपने किसी को नमाज की दावत दे, अपनी वजह से एक भी नमाजी बन गया, दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार है। हम किसी को सच्चाई की तलकीन करें, एक बंदा भी सच बोलने वाला बन गया, दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार है। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। उसके बाद जो सिफत बयान की गई, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छी बात का हुक्म देना। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साहिहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। और उसके बाद 9वीं सिफत का हुक्म दिया गया, वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। 9वीं सिफत है वो अल्लाह की हदों की हिफाजत करते, यानी जिन चीजों से अल्लाह ने रोक दिया अब वो उस तरफ नहीं जाते। हजरत जुनैद बगदादी कहते, हो सके तो तू औरतों के कपड़ों को भी देखने से बचा कर। किससे? ये अल्लाह की हदें हैं। औरतों के कपड़े भी मत देखा करो, क्योंकि उससे भी तेरे दिल की नूरानियत उड़ती चली जाती है। हो सके तो तू बकरी के थन भी बगैर उज़्र शरई न देखा कर। अगर तुम बकरी का दूध धोते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर बकरी का दूध धोने की जरूरत तुमको नहीं पड़ती
تو तुम बकरी का थन भी देखने से परहेज करो। हो सके तो तुम गाय और बैल के दुम के नीचे की जगह भी बगैर उज़्र शरई न देखो, क्योंकि ये अल्लाह की हदें हैं। तुम इन चीजों को देखकर अपने दिल की नूरानियत खोते हो। मुझे बताओ, जब बैल और गाय के दुम के नीचे की जगह देखने से इस्लाम रोकता है, बकरी के थनों को बिला उज़्र शरई देखने से रोकता है, गाय के थनों को बिला उज़्र शरई देखने से रोकता है, औरतों के कपड़ों को देखने से, नामहरम औरतों के कपड़ों को देखने से रोकता है, तो जो कौम इंटरनेट पर जिना के मनाजिर और मर्दों को और औरतों को नंगा देखते हैं, उनका हाल क्या होगा? मोमिन की सिफत है वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, वो अल्लाह की हदों की हिफाजत करते हैं। जिन चीजों से अल्लाह रसूल ने मना कर दिया उन चीजों से रुक जाते हैं। ये मोमिन की नवी सिफत है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा एक बुजुर्ग के बच्चे की उम्र 2 साल हो गई, यानी सूरज गुरूब हुआ 2 साल उम्र हो गई। अब शाम हुई तो उनकी बीवी उनके बच्चे को दूध पिलाने लगी, तो आपने फरमाया खबरदार दूध मत पिलाओ, क्योंकि बच्चा 2 साल का हो गया और अल्लाह का हुक्म है कि बच्चों को सिर्फ 2 साल तक दूध पिलाओ, अब तुम दूध नहीं पिला सकती, ये अल्लाह की हदें हैं। मोमिन अल्लाह की हदों की यूं हिफाजत करते। सहाबे किराम जब शराब हराम हुई तो उन्होंने शराब के बर्तन भी तोड़ दिए। अल्लाह की हदें। और आज हम हलाल और हराम में अल्लाह की हदों में कोई तमीज नहीं करते। अल्लाह की हदों की हिफाजत करो, ये मोमिन की नवी सिफत है। जब ये 9 सिफत पैदा हो जाए तो अल्लाह फरमाता है वबश्शिरिल मुमिनीन, मोमिनों को बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो। अरे जिसे कुरान खुशखबरी दे रहा है वो दुनिया में भी खुश रहेगा और आखिरत में भी खुश रहेगा। 9 सिफतें अपने अंदर पैदा करो। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजे रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुरी बातों से मना करने वाले, अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। इस आयत में कि आईने में अपना चेहरा देखो और ये 9 सिफतों को याद कर लो और इसे अपने अंदर पैदा कर लो। अगर ये किया, इस इज्तिमा में आना कामयाब, बैठना कामयाब, जाना कामयाब। अल्लाह हमें मोमिने कामिल बना दे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला माफ फरमा दे। हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।